नमस्ते भारत, WH न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल खवसे। आज की खबर के प्रायोजक है यश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर्स वाड़ी नागपुर। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे, खबर छुपाते नहीं दिखाते हैं। राजनीतिक हो या सामाजिक, क्राइम हो या भ्रष्टाचार की, अन्याय हो या अत्याचार की, हम देते हैं निडरता से खबर को महत्व। आप भी खबरों को महत्व दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर आर्थिक मदद करें। आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। सर्व मान्यवरांच्या हस्ते पुस्तकाचं अनावरण होत आहे। सर्वांनी या क्षणाला टाळ्या वाजवून अविस्मरणीय करावं। शब्दांमध्ये असते एक अद्भुत ताकद, ती केवळ भावना व्यक्त करत नाही तर समाजाला दिशा देते, संस्कृतीला समृद्ध करते आणि विचारांना अजरामर करते। प्रत्येक पुस्तक हे केवळ अक्षरांचा संग्रह नसून तो एक संवेदनशील वारसा, जीवनाचे प्रतिबिंब दाखवणारा शाब्दिक आरसा। सर्व मान्यवरांच्या प्रेरणादायी सहवासात हा पुस्तक प्रकाशन सोहळा अधिक तेजस्वी ठरत आहे आणि हा क्षण एका नव्या सर्जनशील प्रवासाचा साक्षीदार। And holding a very responsible post now, Mr. Akshay, Indian Audit and Account Service 2014 batch. Puran Mechram Sahab, Tadakan Dhanvijay sir, my parents, my better half, Dr. Bhavana Dhabre, the very active team, Ajay Chalkure, Prashant Dhabre, Chetan Nagrale, and all the supporters. Since the book is in English, I will be speaking more in English. चालेल ना? कारण तुम्हाला वाचायचं पण आहे नंतर. ठीक है, हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों का एडवांटेज है अभी अपने को. थैंक गॉड इट्स नॉट हैपनिंग इन लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. Yeah. So basically, yesterday I was being interviewed by one of the podcast, and the first question she asked was, "Why did you choose this story?" So I said that this story has a lot of advantages because everyone knows the story. उनको मालूम है और मुझे लिखना है. There is nothing new in the title or in the basics of story as such. But when the things are known, the curiosity can increase. That what this 3-page or 4-page story has been, how it has been expanded to around 130, 140 pages. So what we know is that there was some egoistic animal, rabbit. He was very arrogant about his speed and agility. And then he thought to humiliate tortoise because he did not like the slow moving animals. So he wanted to humiliate him publicly, and there was a race, and it was most easiest race in his life, but he lost because he slept. सो गया. हम लोग भी बहुत सोते हैं. जो एन मौके पे सोते हैं उनका फिर क्या हाल होता है, ये स्टोरी बताएगी. So basically rabbit won due to mistakes rabbit made. The story goes like this. He slept is a major epicenter of the story. अभी रेस के बीच में कौन सोता है? In the middle of the race. Why he slept is a matter of investigation. Sir, in terms of Customs Act 1962, the reverse investigation. Tortoise भी सो सकता था. It was easy for him because वो तो जीत ही नहीं सकता by any stretch of imagination. It was very easy for him to sleep. But that thought did not strike his mind. उसके दिमाग में नहीं आया, भाई साहब के दिमाग में आया. मैं सोता हूँ. Let me sleep. I can have a nap. Risk of sleeping
तो स्लीपिंग के फैसले के लिए उसके कैरेक्टर पे जाना पड़ेगा, टू गो इनटू द nitty gritties and intrinsic method which made him take the decision of sleeping. So then what kind of character he was? ये मेजर एस्पेक्ट है स्टोरी का. दिस इज वन एस्पेक्ट. सेकंड एस्पेक्ट, व्हाई देयर वाज अ रेस. व्हाई देयर वाज अ रेस. ओरिजिनल स्टोरी स्पीक्स वेरी लेस अबाउट why there was a race. So these two questions, keeping them fundamental, I have taken a creative liberty to create a new narrative, extrapolated narrative, that कि जंगल में कहानी हो रही है तो जंगल की सिस्टम क्या है, what are the social systems who were ruling the jungle, why rabbit was so much egoistic. So of late, as the anchor was telling about that, when I was trying to understand the few aspects as we are growing matured in the life now, so now it becomes a responsibility of matured people to share some messages and teachings, whatever you understand from your life. So I just thought कि whether this story can be converted into some life teaching literature, whether we can create an inspirational account out of it. So then I started extrapolating. तो जंगल कैसा होता, मैं मराठी में आ गया अभी. What were the social systems again? Who were ruling? So this rabbit was a son of ruling family. He was son of ruling family. An oligarch. The wealthy people will rule the society. That is called as oligarchy. Oligarchy was there and he was son, the only son, but endowed with lot of skills and talents. उसके पास एक एजिलिटी एंड स्पीड का एक नेचुरल एडवांटेज था. सो ही वॉज इन चार्ज ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑल्सो. तो बड़े कम एज में उसको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मिल गई. सो यू हैव पावर पोजिशन, you have money, you have ruling family, plus you are naturally endowed with skill, a special skill, plus you have a bad company also with henchman, then he has gun also, बंदूक भी है. अब मुझे बताओ, once you have a power position, you have a ruling family, you have money, you have henchmen, and you are endowed and gifted with some speed, agility, it is very natural to become egoistic. And there comes the role of family and society. That such a person is likely to fall prey to his ego. या अशा प्राण्याला गर्वाच्या घरात वरती चढणे फार सोपं आहे. अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करते हो तो ये आसानी से वही बनेगा जो बना. So in a book you will find that what are the failure of family, what is the failure of society, his community, because he was not being checked at all. उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, उसके ऊपर कोई restriction नहीं था. He wanted to enjoy liberty because he was ruling. That jungle was not free jungle, it was pay and use facility. That jungle was that every animal had to pay some fee and sing an anthem for the rabbit, salam said type. वो सब करके इसका ego और every day. So now this ego, it was getting floated, it was getting swollen, बढ़ रहा है. तो easily he will become arrogant. उसको बोलने वाला कोई नहीं. तो this he started enjoying, making fun of all the animals. ये पानी का थोड़ा देखना, वाटर बॉटल अजय. So
he started making fun of all the animals. है ना यार. And he started enjoying that mockery. इसका मजाक उड़ा, उसका मजाक उड़ा, उसका अपमान कर, उसका अपमान कर. Phones can be a little silent. And he became arrogant and he started enjoying. So that made him a kind of a sick mental animal being. आपको पता नहीं चलता कि आप मेंटल सिकनेस आपने कब अट्रैक्ट की. हम बाहर से बड़े अच्छे लगते हैं, बाहर से वो भी अच्छा लगता था. जीप है उसके पास, बंदूक है, दोस्त है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बिकॉज ही वॉज स्मार्ट ऑल्सो. Because this rabbit community was a community which had a vision to cultivate the lands and become very rich through agro-processing industry. Vast lands of agriculture were used by them for becoming rich. So they were very revered, बहुत सम्मानित community थी. उसके पास natural एक दिमाग भी था. लेकिन this background of him was making him more egoistic, and then he slowly became arrogant. Then he started hating the slow moving people. अभी आप किसी का मौकरी मजाक कर रहे हो वो भी ठीक है, उसके बाद आप हैटरेट करना शुरू करते हो. उसको लगता है कि ये बिकॉज ही स्पीड वॉज वेरी ग्रेट, वो स्प्रिंट करेगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, लोगों को दिखाएगा अपनी कर्तव्य. एंड ही वॉज ऑल्सो हंग्री ऑफ वेरी अटेंशन एंड प्रेज. उसको भी आदत भी होगी कि कोई लोग मेरी तारीफ करे तो वो अभी कर्तव्य दिखाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा. ऑल दैट ही यूज्ड टू डू. बट देन स्लोली ही स्टार्टेड हेटिंग स्लो मूविंग एनिमल्स. तो टॉर्टाइस के ऊपर उसका ध्यान गया कि ये क्या है, ये कौन सा एनिमल है, व्हाई डज इट एग्जिस्ट. उसका दिमाग वहां तक गया. व्हाई द स्लो मूविंग एनिमल्स आर एग्जिस्टिंग, व्हाट इज द पर्पस. सो स्लोली यू सी ही वॉज कन्वर्टिंग और ट्रांसफॉर्मिंग हिमसेल्फ इनटू अ विलन. एक खलनायक की तरह वो जा रहा था, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा था. मेन पॉइंट क्या है, द मेन पॉइंट ऑफ द स्टोरी एंड द बुक विल, उसको पता नहीं चल रहा था. बहुत सारी चीजें हमको पता नहीं चलती है. ये मेजर स्टोरी का एक बेसिक लाइन चलता है कि ही डजंट बिकम अवेयर ऑफ व्हाट ही इज बिकमिंग. वो क्या बन रहा है. ऐसा होता है ना, आफ्टर स्टेज ऑफ लाइफ यू डोंट नो व्हाट यू हैव बिकम, वेदर यू हैव बिकम व्हाट यू वांटेड, अदर वेदर यू हैव नॉट बिकम व्हाट यू वांटेड, और whether you have become something you didn't want, or you became somebody which never was in your plan. अभी रैबिट का भी प्लान समझ में नहीं आया, but he was becoming villain. He used to mock these slow moving lumps, and then he wanted all the honor and felicitation is for him. So we are shown the communities of the jungle. वो हाथी का मजाक उड़ाएगा, कैमल का मजाक उड़ाएगा, जिराफ का उड़ाएगा, और ये स्नेल एंड जो टॉर्टाइज है वो इसके स्पेशल दुश्मन थे, जबकि उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा था. ये भी होता है, आपको बिना वजह दुश्मनी भी हो जाती है. बहुत सारे लोगों को आप मिलते भी नहीं हो, फिर भी यू स्टार्ट स्पीकिंग इल अबाउट देम. ऐसा करते हैं हम लोग, है ना. वी क्रिएट इंप्रेशन ऑफ सम पीपल, बट ही यूज्ड टू टॉन्ट एंड कॉमेंट ऑन देम, एंड इट वाज बिकमिंग अनबियरेबल ऑल्सो. सो every animal in the jungle was becoming worried about his eccentric behavior, we can say. So story जाती है. अब ये मौकरी कर रहा है, सबका मजाक उड़ा रहा है, एरोगेंट बन रहा है. पैसे की भी उसको लालच है, तो पैसे के लिए भी कुछ काम. उसके दोस्त जो हम लोग क्या बोलते हैं, फंटर, हेंचमैन. सो ऐसे लोगों को बुरी कंपनी तो बहुत आसानी से मिल जाती है, बिकॉज देयर आर पैरासाइट्स. जिसके पास पैसा है उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, एंड दे आर जनरली मीनिंगलेस, वर्थलेस. तो वो उसको चढ़ाएंगे, उसकी तारीफ करेंगे. ओके, यू वन हैज टू बी वेरी अवेयर ऑफ और वेरी ऑफ द प्रेजेस पीपल डू फॉर यू. सो ही थिंक्स दैट फेलिसिटेशन इज ओनली फॉर हिम, बट वन डे he injures the snail, and this tortoise helps him in getting
away from that problem, and because of this the whole jungle felicitates tortoise. Now this felicitation, एक तो उसको पहले गुस्सा है, ऊपर से इसका सत्कार हो गया, बाकी एनिमल ने उसका सत्कार कर दिया, तो ये उसकी जो आग है वो मस्तक में, जो मस्तक ऑलरेडी ईगो से भरा हुआ है, एंड दैट्स व्हाई ही थॉट लेट मी टीच लेसन टू दिस टॉर्टाइज, एंड दैट्स हाउ उसको लगता है कि वो स्टाइल से वो कच्छप को यानी टॉर्टाइज को कन्विंस कर रहा है रेस के लिए. नाउ कमिंग टू टॉर्टाइज, and I'm telling you, in jungle there was a border dispute also. Rabbit community और tortoise community के बीच में एक border dispute है, जैसा इंडिया पाकिस्तान के जैसा. बड़ा border dispute इस वक्त हमने अभी कोर्ट में रखा है. It is in the tribunal, and tribunal में वो tribunal चलाते हैं ईगल्स को ऊपर उड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही, वो नीचे नहीं आते, तो उनका border dispute is just lingering on for so many years now. Okay, so that narrative also is created. So he thinks that I should humiliate this tortoise. उसका satisfaction नहीं हो रहा है, वो जल रहा है, तो then he thinks के इसको मैं इससे रेस लगाता हूँ, इसको हराता हूँ, फिर मेरे को शांति आएगी. भाई शांति किस चीज़ से आ रही है? स्लोवेस्ट मूविंग एनिमल के साथ रेस लगा के उसको हरा के आपको शांति आ रही, तो सैडिस्टिक हो गया. पढ़ा लिखा आदमी भी ऐसी गलतियां कर सकता है, करते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आप किसका मजाक उड़ा रहे हो. It is so easy to make fun of the weaker. It is so difficult to respect the weaker, isn't it? So the one who suffers from mental sickness can do it, and he doesn't realize. उसको समझ में नहीं आता कि वो कर रहा है. So we are now, I'll tell you something about tortoise. Tortoise की बहुत तारीफ नहीं करता हूँ मैं, किताब में भी नहीं की मैंने ज़्यादा. But tortoise was a product of discipline. He was a very clear animal. He was very clear animal. He was aware. He was a little bit enlightened also. सेल्फ कंटेंट था, संतुष्ट आदमी था, हार्ड वर्कर था, एंड बिल्कुल कम बात में बात करना. बट ही वॉज वॉचिंग के होल जंगल इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस रैबिट. Very good evening to all of you. पहले तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस program today because Rajesh and me are friends from the last 25 years almost. 2000 दिसंबर में हम लोग IRS में बैचमेट्स थे, तो बाद में 2001 में मैं IAS में चली गई. बट ये होता है कि कुछ लोग दोस्ती निभाते हैं तो कुछ लोग छूट जाते हैं. तो ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु हैज़ केप्ट इन टच, एंड वी एटलीस्ट मे बी ट्वाइस अ ईयर, थ्राइस अ ईयर तो बातचीत होती थी हमारी. लेकिन नागपुर आने के बाद, बिकॉज दिस इज होम टाउन, so he comes often to Nagpur, so we get to be in touch. So I'm very happy that he's been able to bring out this book. क्योंकि क्या होता है कि जब एक बुक लिखने तक हमारी इंस्पिरेशन बढ़ रही है, it means that there's really some story that we really want to tell. तो राजेश is just not just the IRS officer या GST commissioner, but he's a wonderful human being. He has a lot of empathy for the community. He is a music director. He's a wonderful singer. We are all beneficiaries of his singing. You know, whichever party, whichever program, he's always there. He's a volunteer to sing. Yeah. So, and very talented, extremely talented. He and our Bhabhi ji also, Bhavana ji. So they did bring out a music album also. There are a lot of things he has done, because कई बार हम लोग क्या होता है कि सर्विस में आ गए तो सर्विस को छोड़कर, बाकी काम को छोड़कर अपने हॉबीज़ या अपने इंटरेस्ट को बहुत परस्यू नहीं कर पाते हैं. तो बट एटलीस्ट वेन एवर ही इज गॉट एन अपॉर्चुनिटी, ही इज बीन एबल टू डू दैट. ही हैड कम ऑन डेपुटेशन टू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो, तो ही वॉज एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट टू पार्टी ऑल्सो. सो यू नो, एक मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी है. और अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, वेरी फ्लूइड इन द वे ही ब्रिंग्स आउट द स्टोरी. आज आपको 140 पेज का पूरा स्टोरी उन्होंने पूरा ही बता दिया. यस, मैं क्यों बोल रही हूँ, मैंने 4 बजे आज वो बुक ख़त्म किया है. ठीक है, 140 पेज ख़त्म किया है. मैं रात को जब सो रही थी तो मेरे 100 पेज के आसपास आ गए, तो 40 पेज मैंने सुबह कंप्लीट किया है. बट यस, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल बुक.
बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ती नहीं हूँ. अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं जाता है 10-20 बुक के बाद मैं पीछे वाला 15-20 पेज पढ़ लेती हूँ ना. तो बट दिस स्टोरी केप्ट मी हुक्ड बिकॉज मैं सोच रही थी कि बचपन से सबने स्टोरी सुनी है. एवरीबडी नोज द रिजल्ट ऑफ द स्टोरी एंड एवरीबडी नोज व्हाट इज द मेन लेसन इन द स्टोरी. बट स्टिल अगर उसको इतना 140 पेज में एक्सपांड करना है, कैसे एक्सपांड करना है, इसे बहुत सोचा होगा, कितना सोचा होगा. And then apart from that, he has made it very, relevant to current times. Like it's about TED Talks or social media पे थे या pub में चले गए वो या and then lot of things that make it like आपको एक rabbit का world दिखता है. Rabbit का world है, they are the oligarchs as he's told, and the entire forest, बाकी जो interdependence है and society में होता रहता है. हम लोग observe करते हैं, it's not normal. क्योंकि सभी चीज़ें अगर नॉर्मल रहती है सोसाइटी में तो अलग रहती है. तो पीपल बिहेव क्वाइट डिफरेंटली इन द सोसाइटी एंड सम पीपल आर अरेगेंट, सम पीपल आर सबड्यूड, सम पीपल कम विद अ बैगेज, सम पीपल कम विद अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ऑल्सो. सो अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं. बट एट द सेम टाइम लाइक ह्यूमन्स को भी उन्होंने बहुत बना दिया कि अगर एक टाइम एनिमल्स और ये स्ट्रांग हो जाते हैं तो ह्यूमन्स की क्या परिस्थिति हो सकती है करके उनको लेबर बना दिया उसमें और इन रैबिट्स को राजा बना दिया. सो इट्स अ नाइस फिक्शनल वर्ल्ड he has created. So it's nice to see him through that. It would be a wonderful book for children also and for older people also. मैं पहले सोच रही थी has he done it something like a Panchatantra story? No, it is far beyond that. It's got, as he said also, there is a message in every page. There is something that he wants to convey in everything because as I told you, he's a very wise person and a very sensitive person also. So इसमें मैं बाकी एंगल्स नहीं लाना चाहती हूँ बिकॉज वो हम लोग कभी बैठ के वी कैन डिस्कस दैट. देर इज़ अ पॉलिटिकल एंगल टू दिस ऑल्सो, देर इज़ अ कम्युनिटी एंगल टू दिस ऑल्सो, देर इज़ अ लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट्स हैपनिंग अराउंड इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम एंड ऑल्सो इन द सिस्टम अराउंड अस. देर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट ऑल्सो, बट इट्स अ डीपर मीनिंग इफ वी कैन गेट देयर. एंड आई वुड से लाइक ये जो just not the rabbit story or the tortoise story and its qualities, good qualities. And कई बार आपको लगता है आप tortoise है क्या rabbit है करके, बट आपको ये लगता है शायद पहले हम tortoise थे अभी rabbit बन गए हैं, ये भी लगता है. तो if you feel that at different stages of your life when life throws challenges at you, at some points you become the tortoise, at some points you become the rabbit. तो कभी स्पीड पकड़ लेती है, सब अच्छा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, आपको सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाता है तो आप रैबिट की तरह बिहेव करना शुरू करते हैं. तो और एक धक्का लगता है लाइफ में, तब जाके वापस फिर लगता है हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, लाइन पे आना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा. एंड इट नीड्स एवरीबडी कैन नॉट बी लाइक प्रॉब्ली डिसिप्लिन फॉर ऑल देयर लाइफ. They cannot be the best of human beings for all their life because we are human beings. We are going to keep changing the way we are. We are going to keep changing the way we behave, way we look at things. And at a point, एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस भी आ जाता है आदमी को बिकॉज वही रिपीटेटिव चीज़ करते रहते हैं. लाइक ब्यूरोक्रेसी, व्हेन ही यूजेस द वर्ड ओलिगार्की, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये पूरा हमारा पॉलिटिकल साइंस का ये झोंका डाल रहा है बिकॉज वी बोथ हैड पॉलिटिकल साइंस एज one of the optionals in the civil service exam. Even though we both are engineers, we had taken political science and IR as one of the subject. तो मैं जब यानी 2000 बैच में हम लोग थे, 2001 बैच में I got the first rank. Political science I scored very high. He asked me तुम कौन सा बुक पढ़ती थी political science के लिए? तो मैंने बोला प्रेम अरोरा का एक बुक था, गाइड बुक था, उससे पढ़ लिया because I'm an engineer and I don't have a political science background. तो ही टोल्ड मी आई शुड थ्रो दैट बुक लाइक दिस. ऐसे मैं वो बुक को फेंकता था, इतना सिंपल गाइड बुक पढ़ के तुमने पास कर लिया करके. सो दिस वन ऑफ द थिंग्स यू विल नॉट रिमेंबर, बट ही वाज वेरी फ्रेंडली. नॉट ओनली दैट, ही वाज वेरी सपोर्टिव. एंड इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एंड एवरीथिंग, एक 3-4 सीनियर्स थे काफ़ी हमें दे हैड केप्ट अस इन छत्रछाया टाइप ऑफ थिंग. सो इट वाज वेरी, आई मीन वी हैव वेरी गुड मेमोरीज ऑफ ऑल द गुड टाइम स्पेंट इन फरीदाबाद, इन नैसन. एंड ऑल्सो later also because it's just the beginning. बाद में what you go through in service, the lots of ups and downs, not only in your professional front, personal front, and you need friends at every stage of life. So that has been there, and then I'm very happy he could bring this out. I'm very happy for his family also today. So when he asked me where we should do the program, I did suggest Crossword, and I also told him call people who matter to you, because कौन हमारे लिए खुश रहेंगे? हमारी families, हमारे friends, हमारे well wishers.
it's not like a general thing. Like if you bought a book and then अगर किसी को interest है आपने क्या लिखा है, it is only people who are very close to you. So I think I think it's a right blend. All the people who are his well-wishers and also people who are curious about what this book is about, they are all here. So thank you so much for inviting me and making me a part of this. I wish a lot of success to this book. I wish it becomes like a return gift or present for birthday parties or when children have get-togethers or for libraries. And you can finish this book in 3-4 days. So even I think adults should read this book at least once, then give it to your children because there is a lot of takeaway for us also. Thank you so much. मानकर जी, अक्षय जी, राजेश जी को और मेरा हम एक ही सर्विस में होने के बावजूद भी काफ़ी सालों तक परिचय नहीं था क्योंकि हम हमेशा अलग अलग जगह पे पोस्टेड रहे। लेकिन इनके बारे में मैंने हमेशा सुना है, ये बड़े धनी व्यक्तित्व के स्वामी हैं, बड़े मल्टी फेसेड मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। इनके गाने हमने बड़े सुने हैं, तो इनके गानों के बारे में तो मुझे पता था। तब जब इन्होंने कहा कि मैंने किताब लिखी है तो मुझे दैट वाज अ रिवोल्यूशन टू मी। और इन्होंने कहा कि आप उसके प्रकाशन के समारोह में आइए, तो मेरा पहला रिएक्शन था कि मैं एज ए विजिटर आऊँगा, तो क्योंकि ऐसे जनरली ओकेजन बहुत कम आते हैं। तो इन्होंने जब कहा कि नहीं कि एक IRS लिख रहा है और एक उसके फंक्शन में IRS नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आई केम हियर एज अ माई ड्यूटी रादर देन इन्विटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज अ फ्रैंकली स्पीकिंग देश में या फिर विदेशों में कोई भी टैक्स पे करना नहीं चाहता, तो नेचुरली कोई टैक्स पे नहीं करता तो टैक्स पेयर को भी कोई प्यार नहीं करता। आज तक आपने कई सुना होगा कि ये फलाना अफसर बहुत अच्छा है, वो फलाना अफसर अच्छा है, लेकिन आप कभी लिखा हो कि ये इनकम टैक्स कमिश्नर बहुत प्यारा है, ये GST कमिश्नर बहुत प्यारा है। एवरीवन हेट्स देम। हाँ, तो इसलिए अगर एक टैक्स ऑफिसर कोई किताब लिख रहा है तो लेट हिज ट्राइब इंक्रीज। सो ये जो किताब इन्होंने लिखी है ये तो हमने बचपन से पढ़ी हुई कहानी है, इन्होंने इसको बड़ा एक्सटेंड किया है। ऐसा नहीं है कि हमारे सोसाइटी में हिस्ट्री में टैक्स का कोई कभी योगदान नहीं रहा है। मतलब वो तो आप गांधी पिक्चर देखते होगे कि गांधी जी को जो दांडी यात्रा में साल्ट पिकअप किया था, जो पुलिस जब पकड़ता मिस्टर गांधी और अरेस्ट, वो साल्ट एक्ट के लिए किया था। या फिर कई है वो प्रेमचंद के, मतलब क्या वो नमक का दरोगा में जो ईमानदार ऑफिसर था वो भी सेंट्रल एक्साइज का ऑफिसर था। सो ऐसा नहीं है कि टैक्स का हमारे जीवन में कुछ, हमारी हिस्ट्री में कुछ हर जगह इसका रिवोल्यूशन है, बट टैक्स मैन राइटिंग अ बुक इज अ वेरी unique thing, and I think I just must congratulate him. He has taken a small story and elaborate him. अभी रैबिट का हो गया, तब कौवा बाकी है मेरे ख्याल से। कौवा भी काफ़ी दिनों से प्यासा पड़ा है। ठीक है, so I asked him to, there is one कौवा sitting there thirsty and willing, no one is helping him out, so let's have something. So although he उस जमाने में तो उसने तो पत्थर डाल के अपना कुछ तो लेवल बढ़ा ली थी, but time has come that he has to, artificial intelligence के ज़माने में he has to come with some other ideas, and instead of waiting for so many hours and just to quench his thirst, he must have come out something else. And I asked Rajesh ji to, कौवा is बहुत सारे कुछ हमारे हैं जो वेट कर रहे हैं, so he writes on them and have one more author among them. Thank you very much. राजेश ढाबरे सर, थेटे सर, अक्षय आणि प्रेक्षकामध्ये फार मोठे लोक बसलेले आहे। आमचे पुरण मेश्राम साहेब आहेत, हिरेकन साहेब आहेत आणि अनेक लोक बसलेले आहे। खरं म्हणजे पुस्तक सरांनी मला जेव्हा फोन केला की असं पुस्तक आहे, आय वॉज सरप्राईज। सरांना म्युझिक कंपोजर, ओरेटर,
सोशल कॉजसाठी काम करणार आहे असं माहीत होतं. आणि सरांनी ते पुस्तक पाठवलं मला, पण सरांनी जेव्हा मला सांगितलं यायचं आहे तेव्हा मी मुख्य संरक्षक वनभवनला होतो आणि मध्ये मग माझी बदली झाली. 6 दिवसापूर्वी मी पेंच टायगर रिझर्वला जॉईन झालो. त्यामुळे मला ते पुस्तक खरंच पूर्ण वाचता आलं नाही. फक्त 3 चॅप्टर वाचले मी, 3-4 चॅप्टर, तेही नागपूर ते सिल्लारी प्रवास करताना आणि वापस येताना. पण इतकं इंटरेस्टिंग पुस्तक आहे ते की आपण गोष्ट वाचली ऐकली आहे सशाची आणि कासवाची शर्यत, आणि ससा झोपतो आणि तो हरतो. पण त्या शर्यत कशी चालू झाली, ओरिजिन कसं आहे त्याचं आणि कसा हरतो तो, तर खूप इंटरेस्टिंग आहे. संस्कृत नाव आहे जे सशाचं, खरगोशचं, ते दिलेलं आहे. आणि मेन कॅरेक्टर 2 जे आहे, ससा आणि कासव. मग बाकीचे साईड हिरो सिनेमातले चरित्र. तर मी आता जवळपास 20 वर्षाची फॉरेस्टची वनसेवेमध्ये केलं आहे आणि हे सगळे वन्य प्राणी डोळ्यासमोर रात्री झोपेतही आमच्या येतात. पण फिक्शन आणि याच्यामध्ये आपल्याला हे करावं लागेल. जंगलचा जो टायगर आहे तो राजा असतो आणि त्याच्या एका डरकाळीने सगळे प्राणी पळतात. पण फिक्शनमध्ये आपल्याला कल्पना करावी लागते. आणि इथे हा जो भित्रा पळपुटा ससा जो आहे तो क्राऊन प्रिन्स आहे, राजाचा मुलगा आहे तो, आणि पॉवर आणि हे सगळे जे असतात त्याच्यासोबत आलेले आहे. त्यामुळे त्याची अधोगती होते. आणि खरंच हे पुस्तक वाचताना 4 चॅप्टर मी वाचले, 3-4. आणि आम्ही जे ट्रेनिंग करतो सिव्हिल सर्व्हिसमध्ये, वेगवेगळ्या फाउंडेशन कोर्स असतो आमचा, मग प्रोफेशनल कोर्स असतो, किंवा इतरही सगळ्याच, म्हणजे आमच्या फॉरेस्ट गार्ड असो किंवा कृषी विभागातले, ते या सर्वांना आपण ट्रेनिंग देतो. आणि त्या ट्रेनिंगमध्ये जर हे पुस्तक वापरलं तर याचं प्रत्येक पुस्तक पेजवर, प्रत्येक चॅप्टरवर यांनी एक मॅनेजमेंट गुरु जे शिकवतो आता आपल्याला तसं दिलेलं आहे. तर जसं ते कासवाने त्या स्नेलला मदत केली, त्याच्या कवठाचं फळ पडते, कवठ माहीत असेल, आणि ती इंज्युअर्ड होते, आणि मग कासव तो त्याला घरी घेऊन जातो, मदत करतो आणि तो निरोगी बरा होतो. तर जंगलात त्याचं सगळं फेलिसिटेशन करतात, हार तुरे देतात. पण तो ही वॉज हंबल. त्याला तो झाडावर चढला नाही, किंवा म्हणतात ना ते घुटण्यात अक्कल जाणं, ते झालं नाही. आणि त्याच्यामुळे तो पॉप्युलर झाला. म्हणजे आपण जर इतरांना मदत केली तर कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात ते आपल्याला परत मिळतं. दुसरा जे याचे मित्र होते या सशाचे, ते त्याला हरभऱ्याच्या झाडावर चढवणार आहे ना. जसे जे फेअर वेदर फ्रेंड म्हणतात, तुमच्याकडे पैसा आहे तोपर्यंत मान पोझिशन. आता आमच्याही सिव्हिल सर्व्हिसमध्ये तसंच आहे. आता 8 दिवसापासून माझा फोन बंदच नाही होत. अगोदर जेव्हा साईड पोस्टिंग असते शांतता राहते. तर तेच आहे, जे फेअर वेदर फ्रेंड पासून तुम्ही सावध राहिलं पाहिजे, आणि आपण हंबल राहिलं, लोकांना मदत केली तर आपला विजय होतो. तर हे पुस्तक खरंच शाळेमध्ये वाचलं पाहिजे. ज्या ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आहे तिथं हे पुस्तक पोहोचलं पाहिजे. आणि आपण आतापर्यंत ज्या विदर्भातून आलेलो, खेड्यापाड्यातून आलेले लोक आहेत, मोस्टली आत्मकथेचा एक आपला ऑटोबायोग्राफी लिहायचं फॅशन आहे. कोणी मोठं झालं की आपण लिहितो. पण सरांनी एक फिक्शन आणि त्याच्यामध्ये मॅनेजमेंटचे जे प्रिन्सिपल्स इन्क्लूड केले आहे, तर ते खरंच सरांना, म्हणजे मी आय सॅल्यूट हिम. आणि आय विश दिस बुक बिकम पॉप्युलर लाईक यू कॅन विन. जितकेही पुस्तक आहे ते होईल. आणि खरंच या पुस्तकामध्ये कंटेंट आहे. म्हणजे मी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधती रॉय बुकर प्राइज विनर जे आहे, ते वाचताना जी मला तंद्री लागली होती ती हे पुस्तक वाचताना लागली. पण आता मी लगेच वाचेल, पूर्ण करेल. आणि सरांना शुभेच्छा देतो जास्त वेळ न घेता. आणि मला बोलवलं इथे. सर्वांना धन्यवाद. Respected Bidri madam, Thete sir, and Mankar sir, and all the dignitaries present here today, and all of you have come to on the August event of inauguration of this book.
मी एवढंच म्हणेल की ह्या पुस्तकाविषयी जेव्हा सरांनी म्हणजे एका व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये जसं अनाऊन्स करतात, सिव्हिल सर्वंट्स जुळलेले असतात व्हॉट्सअप ग्रुप्समध्ये. तर मी जेव्हा हे पहिल्यांदा पुस्तकाविषयी माहिती बघितली तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की देर इज समथिंग व्हेरी युनिक कॉम्बिनेशन. ॲज थेटे सर सेड की ॲज अ टॅक्समॅन, but definitely sir has got many different facets. He's a musician and whatnot. So this new aspect has come to fore before us. की सरांनी त्यांचा रायटिंगचा नमुना आपल्या समोर आज सादर केलेला आहे असं मी म्हणेन. बट डेफिनेटली आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, ही गोष्ट सगळ्यांनाच माहिती आहे. तर आय वॉज क्युरियस की काय लिहिलं असेल एक्झॅक्टली, काय लिहिलं असेल. आणि जस्ट बिकॉज राजेश ढाबरे सर आहेत तर डेफिनेटली आपण वाचलं पाहिजे कारण की इंटरेस्टिंग असेल. तर पुस्तक मी घेतली आणि वाचून सुद्धा झाली, रिव्ह्यू पण दिला. सरांनी मला सांगितलं की यस इट इज व्हेरी गुड. ही हॅज ऑल्सो लाईक्ड माय रिव्ह्यू. सो आय वॉज ऑल्सो थँकफुल की सरांना आवडला रिव्ह्यू. अँड he gave me an opportunity also to be present here today amongst all of us, all of you. मला एवढंच म्हणायचं आहे की येस, सिव्हिल सर्वंट्स म्हटल्यावर माझी ही प्रामाणिक भावना आहे की सिव्हिल सर्वंट जो आहे हा लोकशिक्षक पण असतो आणि त्यांच्याकडे बघून म्हणजे दे आर सम वे इन वन ऑर दी अदर वे दे आर द लीडर्स ऑफ द सोसायटी. आय एम नॉट सेईंग की दुसरे आपण सगळेच क्षेत्रात चांगलं काम करतो आहोत, पण आपला भारताची समाज परिस्थिती आणि इतर सगळं बघताना ज्या म्हणजे 2000च्या डेकेड्समधनं किंवा लिबरलायझेशन, प्रायव्हेटायझेशन, ग्लोबलायझेशन जे म्हणतो आपण त्या संदर्भातले त्या वेळेत ही इज अ पर्सन हू इज लाईक दे आर गव्हर्निंग द टॅक्स सिस्टीम. बरं, तो भाग बाजूला जरी ठेवला टॅक्स सिस्टीमचा, मला हे सांगायचं होतं की त्या परिस्थितीत म्हणजे 2000मध्ये परीक्षा पास करणे, आम्ही जेव्हा पास झालो 2014-15 साली तेव्हा 1100 जागा असायच्या, 1000 जागा असायच्या. हे लोक जेव्हा असतात तेव्हा 400-500 खूप झाले 500 म्हणजे. तर त्या दरम्यान हे लोक म्हणजे पास झाले आहेत. तर इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ ग्रेट. आणि आत्ताच्या परिस्थितीत जे मार्गदर्शन किंवा जे इंटरनेटच्या माध्यमातून सगळ्यांना आपल्याला माहिती पडतंय किंवा आपल्याला सोर्सेस अवेलेबल आहेत हे त्या काळी नव्हते. सो इनहेरंटली आय रिस्पेक्ट दिस पीपल व्हेरी मच. यू पीपल आर डेफिनेटली द लीडर्स ऑफ द सोसायटी इन अ वे. वी टेंड टू फॉलो यू पीपल. तो त्या कासवाच्या बाबतीत जे ठराव आणि सुकून आपण जे म्हणत होतो सर, तर तो फार महत्वाचा वाटतो मला की आजच्या फास्ट मुव्हिंग पेस ऑफ लाईफ जो आहे त्यामध्ये जर आपण सुकून, ज्याला म्हणतात ठहराव जे आपण बोललो याविषयी, तर त्या गोष्टी जर आपण बघितलं की ॲनलाइज करणे, रिव्ह्यू करणे गोष्टी आणि आपण कुठे आहोत, ते सिंहावलोकन जे म्हणतात वगैरे वगैरे, तर ते सर हॅज कम अप नाव अँड ही हॅज गिवन अस अ गिफ्ट इन अ वे की जसे मानकर सर बोलले की हे प्रशिक्षणासाठी आणि जे न्यू एंट्रंट्स आहे शाळेमध्ये आणि सिव्हिल सर्वंट्सला पण जे लोअर लेवलला पण काम करतील, फील्डला काम करतील, त्यांना पण हे फार महत्त्वाचं आणि कामाचं पुस्तक आहे. आणि इन अ वे सर हॅज कॉन्ट्रीब्युटेड इन हिज रोल ॲज अ सिव्हिल सर्वंट अँड ही हॅज गिवन धिस, आय विल टेक दिस ॲज अ हिज सर्व्हिस टू द पीपल अँड सर्व्हिस टू द सोसायटी इन अ वे. म्हणायला सांगणं. दुसरी महत्वाची गोष्ट असा, कोणीही सेलिब्रिटी नाही फिल्म इंडस्ट्रीमधला, गायक नाही की ज्याच्याशी त्यांनी म्हणजे डायरेक्ट शेअर केलं नाही. असे अनेक गायक आहेत. मला आता अलीकडे मी एक संधी मिळाली, आम्ही मानकर सर आणि मी दोघंही दुबईला गेलो होतो. ज्यावेळेस आलो तर ते शंकर महादेवन भेटले. त्यावेळेस मी तुमच्या नावाचा उल्लेख केला. म्हटलं सर ते आमचे, अरे हो बरे राजेशजी एकदम, म्हणजे पहा. तर असे एवढे मोठे सेलिब्रिटीला त्यांनी आणलेलं आहे. हे किती मोठी गोष्ट आहे सर. एक व्यक्ती किती करू शकते, आम्ही काहीच करत नाही, खरं सांगतो तुम्हाला. आणि म्हणून हे प्रेरणादायी असं व्यक्तिमत्व आहे. आपण तरुणांनी यांच्याकडनं प्रेरणा घ्यावी एवढंच या ठिकाणी बोलतो आणि थांबतो. खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया. आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलेंगे एक नए खबर के साथ.
बने रहिए WH न्यूज के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।